سب سے پہلے آپ کو بتائیں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شکست پر چیف سلیکٹر انضمام الحق پھٹ پڑے. کہا سب کو اپنی ذمہ داری نبھانا پڑے گی. ٹیم میں کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے رہا. ہم فائٹ نہیں کر رہے. یہ ہماری کمزوری. انضمام الحق نے خبردار کر دیا اگر یہی پرفارمنس رہی تو ٹیم میں تبدیلیاں آئیں گی. کہا نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز 3-0 سے جیتنی چاہیے تھی. کھلاڑیوں میں خود اعتمادی کی کمی ہے, اس پر قابو پانا ہوگا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد وطن واپس پہنچ گئے ہیں. میڈیا سے گفتگو میں سرفراز احمد نے کہا کہ ہمارے بیٹسمین کو زیادہ سکور کرنے چاہیے تھے. لمبی اننگز نہ کھیلنے کے باعث ٹیسٹ میں شکست ہوئی. انہوں نے کہا کہ کوشش ہوگی کہ غلطیوں کو نہ دہرائیں. جنوبی افریقہ کا دورہ مثبت انداز میں لینے کی ضرورت ہے. صرف کپتان ہی نہیں پوری ٹیم کی کارکردگی سے فرق پڑتا ہے. بیٹنگ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹنگ میں ہمارے پاس ایسے موقع تھے کہ جہاں پہ ہمیں لمبے رنز کرنے چاہیے تھے, لمبی لیڈ لینی چاہیے تھی, تو وہاں پہ ہم لوگ لمبی لیڈ نہیں لے سکے. پہلے ٹیسٹ میں بھی ہمارے پاس موقع تھا, تیسرے ٹیسٹ میں بھی موقع تھا, تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ ٹیسٹ سیریز نہیں جیت پائے. ٹیم کی پرفارمنس جو ہے انڈیویجول میں اپنی پرفارمنس اتنا زیادہ فوکس نہیں کرنا. ٹیم کی پرفارمنس زیادہ میٹر کرتی ہے اور ویسے ظاہر سی بات ہے میری بھی کرتی ہے, لیکن مین جو ہے اگر آپ کی ٹیم جیتتی ہے تو ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. ساؤتھ افریقہ کا ٹور ہے, ٹف ٹور ہے, تو وہاں کوشش کریں گے کہ پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ جائیں. اور وہاں جتنا پازیٹیو رہیں گے اتنا زیادہ ٹیم کے لیے اچھا ہوگا. خبر دیں آپ کو اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی ہنزا کے ہوٹل میں کمرے میں گیس بھرنے سے جاں بحق ہو گئے. بدقسمت جوڑے کی چند روز پہلے شادی ہوئی تھی. جاں بحق ہونے والا جوڑا گزشتہ روز ہنزا پہنچا تھا. نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہے. ایاز, کیا کہتی ہے پولیس, کیسے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہنزا میں؟ دیکھیں جی, فورن سروسز کی سیدہ فاطمی ہے جن کا تعلق اٹک سے تھا. 29 نومبر کو ان کی شادی ہوئی تھی اور یہ آپ کو بتا دیجیے کہ 42ویں کامن ٹریننگ پروگرام سے ان کا تعلق تھا اور یہ دفتر خارجہ میں کامن ڈپلومیسی سیکشن میں تعینات تھی. یہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ہنزا جو ہے وہ وہاں پر اپنا اچھا وقت گزارنے کے لیے گئے تھے اور شادی کے بعد وہاں پر کل رات کو یہ معلوم ہوا کسی وہاں پر ایک ہوٹل میں انہوں نے ایک روم بک کروایا اور وہاں پر یہ رات کو وہاں پر سو گئے, لیکن گیس ہیٹر جو ہے وہ کھلا ہی چھوڑ گئے. لیکن کیونکہ رات کو اکثر وہاں پر ٹمپریچر کافی لو ہو جاتا ہے تو گیس جو ہے وہ جم جاتی ہے, لہذا گیس بند کرنا وہ بھول گئے. جب گیس دوبارہ واپس آئی تو کمرے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ گیس کی وجہ سے پھر ان کو سانس لینا جو ہے وہ محال ہو گیا اور وہ جیسے ہی سو گئے تھے اسی حالت میں صبح مردہ حالت میں جو ہے ہوٹل کے جو وہاں پر اسٹاف تھا انہوں نے ان کو دروازہ توڑ کر نکالا. اس حوالے سے جب ہمارے پاس خبر آئی تو ہم نے ڈپٹی کمشنر ہنزا علی اصغر صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے ایک خبر کو کنفرم کیا. ان کا یہ بتانا تھا کہ یہ جوڑا کل رات کو جو ہے اس ہوٹل میں انہوں نے چیک ان کیا تھا اور ہیٹر جلا کر وہ بھول گئے تھے. اس کے بعد صبح معلوم یہ ہوا جب ان کو دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اور وہ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. دروازہ توڑنے کے بعد سیدہ فاطمی اور ان کے شوہر کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی وہاں پر ان کو ملی ہے. ان کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدہ فاطمی جو ہے فارن سروس اکیڈمی کی 35 اسپیشلائز ڈپلومیٹک کورس میں انہوں نے پوزیشن بھی حاصل کی ہوئی تھی اور اٹک سے ان کا تعلق تھا. ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے آج اٹک اپنے نوائی علاقے واپس لائی جا رہی ہے. 29 نومبر کو ان کی شادی ہوئی تھی اور ہنزا کے ہوٹل میں کمرے میں گیس بھرنے سے جاں بحق ہوئے. آپ نے اپڈیٹ کیا. ایاز اکبر یوسفزئی, بہت شکریہ آپ کا. ایم کیو ایم سے نکالے گئے فاروق ستار اور کراچی کے میئر وسیم اختر آمنے سامنے آ گئے. وسیم اختر نے فاروق ستار کو گھر بیٹھنے اور اللہ اللہ کرنے کا مشورہ دے دیا. وسیم اختر نے کہا جتنا پارٹی کو نقصان فاروق ستار نے پہنچایا ہے کسی اور نے آج تک اتنا نقصان نہیں پہنچایا. فاروق ستار نے پارٹی تباہ کر دی ہے. فاروق ستار نے وسیم اختر کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا وسیم اختر تمہیں کراچی بنانے کا ووٹ ملا تھا, کراچی کو تباہ کرنے, معیشت کو تباہ کرنے کا ووٹ نہیں ملا تھا. فاروق ستار نے وسیم اختر کو انتخابات لڑنے کا چیلنج دے دیا. کہا اب الیکشن لڑ کے دکھاؤ تو کراچی کے عوام بتائیں گے کہ کون سیاست میں بیکار ہو گیا ہے اور کون نہیں ہوا. کراچی کی سپر ہائی وے پر بحریہ ٹاؤن کے ملازمین, رہائشیوں اور ٹھیکیداروں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے 6 گھنٹے سے زائد سپر ہائی وے بلاک کیا. بعد میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر کے سپر ہائی وے کو کھول دیا گیا. کراچی میں بحریہ ٹاؤن پر جاری تعمیراتی کام روکے جانے کے بعد ادارے کے ملازمین, رہائشیوں اور ٹھیکیداروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. متاثرین کی جانب سے سپر ہائی وے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین میں بیرون ملک مقیم سرمایہ کاروں کے اہل خانہ بھی شامل تھے. مظاہرین نے سپر ہائی وے بلاک کر دی جس سے 6 گھنٹے سے زائد شہر میں آنے والا ٹریفک
मुअत्तल रहा। मुलाजमीन का कहना था कि बहरिया टाउन के सरबरा मलिक रियाज ने उन्हें अपनी जेब से 3 से 4 माह तक तनख्वाहें अदा की हैं, तहम अब 1 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही। घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुलाजमीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फैसले पर नजरसानी की अपील की है। दूसरी जानिब बहरिया टाउन के मुलाजमीन और ठेकेदारों की जानिब से तौहीद कमर्शियल से भी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि बहरिया टाउन के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा ख़त्म किया जाए। बाद में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया और सुपर हाईवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैमरामैन ज़िशान इकबाल के साथ ज़िशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। और अभी आपको बताएं, वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वज़ारत इत्तलात में आ जाएं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान से 4 मीटिंग्स हुई हैं। शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर इत्तलात लंदन में 8 दिन से पिकनिक पर हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि लंदन से वापस आ जाएं। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर रेलवे शेख रशीद ने दावा किया है कि वजीर आजम ने कहा है कि वजारत इत्तलात में आ जाएं। कल वजीर आजम इमरान खान से 4 मीटिंग्स हुई। शेख रशीद ने कहा कि वजीर इत्तलात लंदन में 8 दिन से पिकनिक पर हैं। मैंने उनसे कहा है कि लंदन से वापस आ जाएं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने दावा किया है और कहा है कि कल वजीर आजम इमरान खान से उनकी 4 मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि वजारत इत्तलात में आ जाएं। शेख रशीद ने फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात से मुतालिक कहा कि वो लंदन में 8 दिन से पिकनिक पर हैं। मैंने उनसे कहा है कि लंदन से वापस आ जाएं। ये कहा है शेख रशीद ने, दावा किया है उन्होंने और कहा है कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी 4 मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें वज़ीर आज़म ने उनसे कहा है कि वजारत इत्तलात में आ जाएं। साथ ही साथ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुतालिक उन्होंने कहा कि वो लंदन में 8 दिन से पिकनिक पर हैं। मैंने उनसे कहा है कि लंदन से वापस आ जाएं। ये कहा है वज़ीर रेलवे शेख रशीद। बड़ा ही अहम दावा जो कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने किया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि वजारत इत्तलात में आ जाएं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान से 4 मीटिंग्स हुई। वज़ीर इत्तलात लंदन में 8 दिन से पिकनिक पर हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म वजारत की तब्दीली का कहें तो आपका क्या रद्द अमल होगा, जिस पर शेख रशीद ने जवाब दिया कि मैं कहूँगा लव यू, थैंक यू वेरी मच। सहाफ़ी ने जब शेख रशीद से सवाल किया कि वज़ीर आज़म वजारत की तब्दीली का कहें तो आपका क्या रद्द अमल होगा, तो शेख रशीद ने जवाब दिया कि मैं कहूँगा लव यू, थैंक यू वेरी मच। इसी पर बात करेंगे रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ये शेख रशीद की जानिब से दावा किया गया है, वज़ीर रेलवे की जानिब से दावा किया गया है कि वज़ीर आज़म से उनकी 4 मीटिंग्स हुई हैं और उनसे कहा गया है कि वजारत इत्तलात में आ जाए। मजीद क्या बातें सामने आई हैं, क्या दावा सामने आया? लेकिन ये शेख रशीद साहब जो है वो आमतौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उससे पहले कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं या दोस्ताना माहौल में कुछ बात कर रहे होते हैं, तो ये कैमरामैन जो हमारे ये फुटेज ग्रैब कर लेते हैं। और पिछली बार भी कुछ ऐसे ही शहबाज शरीफ के मुतालिक चीन से आने के मुतालिक बातें की गई, तो वो इस किस्म की जो बातें करते हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हम आपसे इस पे अपडेट लेंगे। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने कहा है कि वजारत इत्तलात में आ जाएं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान से 4 मीटिंग्स हुई हैं। एक बार फिर बात करेंगे रईस अंसारी साहब से। रईस अंसारी साहब, आप बता रहे थे वज़ीर रेलवे शेख रशीद के दावे से मुतालिक। जी, शेख रशीद साहब आमतौर पर ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू से पहले करते हैं और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकातें हुई थी 4, और 4 मुलाकातों में वज़ीर आज़म ने उन्हें ऑफर की है कि वो वजारत इत्तलात में आ जाएं। उसने उन्होंने ये कहा कि मैंने उनको कहा कि लव यू, लेकिन उसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये वज़ीर आज़म ने शायद खुद ना कहा हो, क्योंकि शेख रशीद साहब पहले भी वज़ीर इत्तलात रहे हैं और उनकी बड़ी ख्वाहिश भी थी कि वो दोबारा वज़ीर इत्तलात इस गवर्नमेंट में आए। हो सकता है कि शेख साहब ने अब जो बताया कि मुझे वज़ीर आला ने कहा है, हो सकता है कि शेख साहब ने खुद इस ख्वाहिश का इज़हार कर दिया हो। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो उम्र नहीं है कि मैं दिन रात तक काम कर सकूं, इसलिए ये मेरे बस की बात नहीं है। और साथ उन्होंने ये भी जो ख्वाहिश का जो इज़हार किया, जो अंदर उनकी ख्वाहिश है, उसमें ये भी कहा बगैर नाम लिए कहा
کہ फवाद चौधरी 8 दिन से पिकिंग मना रहे हैं लंदन में, उन्हें मैंने कहा कि वापस आ जाएं। तो ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद ना कहा, इन्होंने खुद इजहार कर दिया हो। अभी ये इनका कहना यह है कि ये वज़ीर आज़म की कल 4 जो मुलाकातें उनसे हुई है मुख्तलिफ उमूर पर, रेलवे की बात हुई, दूसरे अमूर पर बात जो हुई है, रेलवे की जो रेलवे में डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी बात हुई, उसमें वज़ीर आज़म ने ये अज़राए चलते चलते बात की। तो जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, यह भी पता चल जाएगा, हो सकता है कि शेख रशीद ने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी हो, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने उन्हें कहा है। जी सही, आपने अपडेट किया रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। साफ़ी साहब, वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म ने उनको कहा है कि वज़ारत इत्तलात में आ जाएं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान से 4 मीटिंग्स हुई हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इस खबर को, इस दावे को? देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो इन दोनों ने अपनी अपनी वजारतें मजबूरन कबूल की हैं। शेख रशीद साहब को रेलवे पसंद नहीं है और पहले भी जब शौकत अजीज काबीना में भी उनकी वजारत तब्दील की जा रही थी तो उस पर वो नाराज थे, खुश नहीं थे। उनको वजारत इत्तलात पसंद भी है और कैमरे और स्क्रीन और इन चीज़ों से उनको प्यार भी है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने बड़ी रेजिस्टेंस की थी, खुद वो नहीं चाहते थे कि वो वज़ीर इत्तलात बने। फवाद चौधरी जिस तरह नॉन सीरियस नज़र आते हैं वो इस तरह नहीं है, वो बहुत गहरे आदमी हैं और हमारे पश्तो में कहते हैं कि जितने वो ज़मीन के ऊपर है इतने वो ज़मीन के अंदर भी हैं। तो उस वक़्त वो पहले तो वज़ारत आला के लिए मजबूत कैंडिडेट थे, इसीलिए उन्होंने सूबाई इलेक्शन भी लड़ा था और बाद में वो नहीं चाहते थे कि उनको ये वजारत मिले, लेकिन इमरान खान साहब के हुक्म और ख्वाहिश पे उन्होंने ये वजारत कबूल कर ली। अब जब वो बाज़ औक़ात जिस तरह मीडिया के पीछे पड़ गए हैं या बाज़ औक़ात जिस तरह खुद कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो वो मीडिया के डायनामिक्स को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं और सियासत के डायनामिक्स को भी बहुत समझते हैं। तो मुझे बाज़ औक़ात उनके बयानात और उनके हरकतों और मीडिया के ख़िलाफ़ उनके जारहाना इक़दाम से ये मालूम लगता है कि शायद फवाद चौधरी साहब खुद ये चाहते हैं कि उनको इस वजारत से हटा दिया जाए, वरना तो अगर फवाद ना चाहें तो इस वक्त वो इमरान खान साहब के इतने करीब है और उनके इतने गुड बुक्स में हैं कि कोई कुछ भी करे उनको वजारत से फिर हटाया नहीं जा सकता। तो मुझे तो ये इन दोनों की अपनी एक सोची समझी प्लानिंग लग रही है जो कि अब इमरान खान साहब को भी शायद किसी हद तक उस पर कन्विंस कर दिया गया है। ठीक, तो साफ़ी साहब, क्या शेख रशीद के इस बयान की कड़ी हम वज़ीर आज़म के उस बयान से भी मिला सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन के बाद कारकर्दगी देखूंगा और फिर काबीना में तब्दीलियां करूंगा? देखिए, वज़ीर आज़म साहब की इस तरह के बयानात को तो खैर हम सीरियस नहीं ले सकते, क्योंकि कल वो दोबारा कह सकते हैं कि जी उस पर यू टर्न ले सकते हैं। बहरहाल वो जो टीम है उस टीम से अगर वो खुद मुतमईन भी है लेकिन कौम उससे मुतमईन नहीं है। सबसे ज्यादा उनके जो पिट गए हैं वो असद उमर पिट गए हैं और इक्तिसादी महाज पे इस वक्त जो कुछ हो रहा है तो यकीनन इसको ना मुल्क के अवाम ज्यादा देर टॉलरेट कर सकते हैं और न इस मुल्क के असल मुख्तार और इस मुल्क को चलाने वाली ताकतें उसको ज्यादा टॉलरेट कर सकती हैं। फिर ये है कि बहुत सारे और लोग भी खुद अपनी अपनी वजारतों पे भी खुश नहीं है। इसी तरह खुद पार्टी के अंदर भी ये एहसास है कि शहरयार अफरीदी जैसे बंदे को दाखिला जैसी अहम वजारत दे के ये कोई पार्टी क़यादत ने अच्छा फैसला नहीं किया है। तो पार्टी के अंदर से भी दबाव है, बाहर से भी दबाव है, इसलिए ये कभी इम्कान है कि आज नहीं तो कल किसी हद तक इमरान खान साहब को अपनी टीम में तब्दीलियाँ करनी होंगी। लेकिन मैं फिर ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये दोनों वो लोग हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस से न सिर्फ इमरान खान साहब मुतमईन है बल्कि फवाद चौधरी साहब की तो हद से ज्यादा कुर्बत है। वो इमरान खान साहब के फैसलों पे भी इस वक्त असरअंदाज होते हैं और कैबिनेट मीटिंग में या निजी महफिलों में जिस बंदे की तवातुर के साथ तारीफें इमरान खान साहब करते हैं तो वो फवाद चौधरी है। और इसी तरह शेख रशीद साहब की भी पिछले दिनों उन्होंने जब 100 रोज़ा कारकर्दगी का रिपोर्ट पेश कर रहे थे तो उसमें भी कौम और टीवी कैमरों के सामने इमरान खान साहब ने तारीफ की है। और वैसे भी शेख रशीद साहब की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत है उन सर्कल में भी जो इस हुकूमत की पुश्तिबान है। तो मेरे ख्याल में किसी और मिनिस्टर की मर्जी के खिलाफ इमरान खान साहब तो कर सकते हैं, लेकिन शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब की मर्जी के खिलाफ इमरान खान साहब कोई इकदाम नहीं करना चाहेंगे। अलबत्ता इन दोनों के दोनों हमारे दोस्त भी हैं
بدقسمتی یا خوش قسمتی سے، اور دونوں کے ہاں مجھے یہ خواہش نظر آتی ہے کہ دونوں اپنی اپنی وزارتوں سے مطمئن نہیں ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہیں اور جانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ وہ گہرے آدمی ہیں اپنی خواہش سامنے نہیں لا رہے ہیں۔ ایک وزارت اعلیٰ کی خواہش ان کے سامنے تھی۔ اور جہاں تک شیخ رشید صاحب کا تعلق ہے تو شیخ رشید صاحب نے ہمیشہ انفارمیشن منسٹری کو انجوائے کیا ہے اور وہ انفارمیشن منسٹری میں آنا چاہیں گے، اور ریلوے کی منسٹری انہوں نے پچھلی مرتبہ بھی بادل ناخواستہ قبول کی تھی اور اب کے بار بھی انہوں نے بادل ناخواستہ قبول کیے۔ صحیح، سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسی پر تجزیہ دے رہے تھے کہ یہ پلاننگ بھی ہو سکتی ہے دونوں وفاقی وزراء کی، یا خواہش بھی ہو سکتی ہے، جس طرح شیخ رشید وزیر ریلوے نے دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وزارت اطلاعات میں آ جائیں۔ کل وزیر اعظم عمران خان سے 4 میٹنگز ہوئی ہیں، اس پر سلیم صافی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار اپنا تجزیہ دے رہے تھے اور اپنا کامنٹ ہم سے شیئر کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ صحافی نے سوال کیا وزیر اعظم وزارت کی تبدیلی کا کہیں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا، جس پہ شیخ رشید نے جواب دیا کہ میں کہوں گا لو یو، تھینک یو ویری مچ۔ اور وزیر اطلاعات فواد چودھری کا اس پر رد عمل آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شیخ رشید کے لیے اپنی نشست چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جی ہاں، فواد چودھری کا یہ تازہ بیان آپ سے شیئر کر رہے ہیں، ان کا رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شیخ رشید کے لیے اپنی نشست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، یہ وزیر اعظم پاکستان فیصلہ کریں گے اس وزارت کے لیے کون زیادہ موزوں ہے، یہ کہا ہے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے۔ یاد رہے اب سے کچھ دیر پہلے وزیر ریلوے شیخ رشید کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اطلاعات لندن میں 8 دن سے پکنک پر ہیں، میں نے ان سے کہا ہے کہ لندن سے واپس آ جائیں۔ اور اسی پر بات کریں گے ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز رانا جواد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر۔ جواد صاحب کیسے دیکھتے ہیں، وزیر ریلوے شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم نے ان سے کہا ہے کہ وزارت اطلاعات میں آ جائیں، کیا ان کی خواہش ہے یا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ چیز انڈیکیٹ تو لازمی کر رہی ہے کہ حکومت کے اندر جو ہے اس چیز کا ادراک بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ میڈیا بیشنگ بہت زیادہ ہے حکومت کی۔ 100 دن کے حوالے سے جو میڈیا کے اندر تبصرے آئے، اس کے بعد گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے اکراس دا میڈیا جو سامنے آ رہا ہے کہ وہ حکومت کی پرفارمنس پہ ایک طرح سے مطمئن نہیں ہے اور کافی زیادہ کرٹیسزم کا سامنا ہے۔ تو ظاہر ہے وزیر اطلاعات اور وزارت اطلاعات جو ہے وہ فور فرنٹ پہ ہوتی ہے، جو کہ میڈیا کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ میڈیا جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے مثبت خبریں اگر دے گا تو جمہوریت اور ملک جو ہے وہ اس کا اچھا امپریشن جائے گا اور آگے بڑھے گا۔ اور یہی سوچ ہے جو کہ حکومت کے اندر بھی ہے، حکومت بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میڈیا کے اندر جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ جو ہے وہ شاید اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ میڈیا مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب کا آج کا یہ بیان، فواد چودھری صاحب کا اس پہ رسپانس کہ اگر شیخ رشید صاحب چاہیں تو وہ ان کے لیے وزارت چھوڑ دیں گے۔ یہ وہ پینک بٹن اس وقت دبا ہوا ہے حکومت کے اندر کہ وہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ وہ کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو پرسپشن خراب ہو رہی ہے یا ان کو جو میڈیا کے اوپر تنقید سامنے آ رہی ہے بہت زیادہ، تمام میڈیا کی بات کر رہا ہوں، کسی پرٹیکولر میڈیا کے حوالے سے نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ جو قصور ہے یا یہ جو مس مینجمنٹ ہے یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ میڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو رہے۔ تو یہ پینک جو ہے یا یہ جو کنفیوژن ہے یا یہ جو کنسرن ہے یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے اس کنٹروورسی میں بھی کہ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر نے کہا لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں اتنا کام نہیں کر سکتا، یعنی کہ جو حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے میڈیا کے اندر اس کا براہ راست حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ میڈیا جو ہے وہ پراپرلی مینیج نہیں ہو رہا، بریف نہیں ہو رہا، ان تک کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری چیز اس کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو حکومت کے اندر چل رہی ہے کنفیوژن وہ آج اب سامنے آ گئی ہے شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ کے ذریعے۔ صحیح، رانا جواد صاحب، سلیم صافی صاحب ابھی اب سے کچھ دیر پہلے ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا تجزیہ یہ تھا کہ وزیر اعظم کے دونوں ہی قریب ہیں، شیخ رشید بھی قریب ہیں، فواد چودھری بھی قریب ہیں اور دونوں کی مرضی کے خلاف اقدام نہیں کرنا چاہیں گے وزیر اعظم عمران خان۔ تو یہ جو اب سچویشن بن رہی ہے دونوں کی جانب سے جو بیان سامنے آئے ہیں، اس کو پلاننگ سمجھا جائے یا خواہش سمجھا جائے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں سلیم صافی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا تو یہ اس پہ ویو ہے کہ جو بھی کیبنٹ کے اندر ہے اس کو وزیر اعظم کا ہر صورت بہت ہی زیادہ اعتماد والا ساتھی ہونا چاہیے۔ کیبنٹ جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے، وہاں پہ پرائم منسٹر کی اگر اعتماد کے لوگ نہیں ہوں گے تو وہ کوئی ایسا شخص وہاں پہ رہ نہیں سکتا، یہ تو ناممکن بات ہے۔ اگر پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے، خود مختار ہے، اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ان کا کوئی زیادہ قریب نہ ہو تو وہ کیبنٹ میں ہوگا۔
जो भी कैबिनेट में है उसको वज़ीर आज़म का एतमाद 100% हासिल होता है। लेकिन बुनियादी बात वहीं पे आ जाती है कि बिटवीन फवाद चौधरी एंड शेख रशीद, फवाद चौधरी साहब का ये पहला एक्सपीरियंस है मिनिस्टरशिप का, और सबसे जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री, 4 मिनिस्ट्रीज टोटल समझी जाती हैं जो कि कैबिनेट के अंदर समझी जाती हैं गवर्नमेंट में कि वो 4 बड़ी क्रिटिकल है। उसमें ज़ाहिर है फाइनेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, इंफॉर्मेशन है और इंटीरियर है। ये 4 मिनिस्ट्रीज हैं जो कि कैबिनेट की रिफ्लेक्शन करती हैं। अब ज़ाहिर है फवाद चौधरी का पहला एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो पहले भी जैसे बात हो रही थी कि जो क्रिटिसिज्म पीटीआई की गवर्नमेंट को सामना करना पड़ रहा है मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह पे, उसकी ये रिफ्लेक्शन है कि हुकूमत ये समझ रही है कि शायद ये वजारत इत्तलात का जो काम है वो ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से मैनेज होना चाहिए। और शेख रशीद साहब भी इस सोच के हामिल होंगे, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स भी ये समझते हैं कि जी हमारा काम तो बहुत अच्छा है लेकिन मीडिया में रिफ्लेक्ट नहीं सही तरह से हो रहा। तो इस तनाजुर के अंदर मेरा ख्याल है कि ये सारी कंट्रोवर्सी जनरेट की है। अब वज़ीर आज़म का क्या फैसला होगा, क्या वो मुतमईन है फवाद चौधरी की कारकर्दगी से, क्या वाकई फवाद चौधरी की कारकर्दगी ही बुनियाद है अगर उनको बैड प्रेस मिल रहा है, या उनको अपने कैबिनेट के अंदर इस मसले को उठाना चाहिए, अपने इनर सर्कल में डिस्कस करना चाहिए कि क्या वजह है कि हुकूमत की तनकीद जो है वो मीडिया के अंदर हो रही है, उसमें कौन कौन सी ऐसी अवामिल शामिल हैं, कौन से ऐसे एक्शन हैं गवर्नमेंट के जो आपके सामने हैं। आपने देखा कि पहले अभी आदम सवाती के केस के हवाले से आपने देखा कि काफ़ी प्रोलॉन्ग हुआ, काफ़ी देर चलता रहा। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। फिर IMF के अंदर जो जाने का मामला था उसके ऊपर काफ़ी कंफ्यूजन हुई। फिर जो बाकी गैर मुल्की दौरे किए उस हवाले से क्या आया, फिर जहाज इस्तेमाल करने वाली बात थी, नहीं थी, करना है नहीं करना, ये ज़ाहिर है मुश्किल हालात है। लेकिन राना जवाद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। मीर साहब, किस तरह से देखते हैं शेख रशीद के बयान को? फिर फवाद चौधरी ने भी रद्द अमल दे दिया, उन्होंने कहा है कि शेख रशीद के लिए अपनी नशिस्त छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या इसे इंडिकेशन समझा जाए कि दोनों ही अपनी वजारतों से ज़्यादा मुतमईन नहीं है? मेरा ख्याल है कि इस सारे मामले में मीडिया को कुछ एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि जो शेख रशीद साहब का दावा है कि उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है और उसमें इमरान खान साहब ने उनको कोई ऑफर की है, तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत करीबी ज़राए हैं वो इस पर बड़े मुहतात अंदाज में तबसरा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात शेख साहब के साथ नहीं की है और ना ही उनकी ऐसी कोई मुलाकात हुई है, क्योंकि अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने जो वजीर हैं उनकी 3 महीने की परफॉर्मेंस का फिलहाल कोई रिव्यू नहीं किया। अलबत्ता ये जो कमिंग मंडे है, मंडे के दिन वो हो सकता है कि इस सिलसिले में रिव्यू करें मुख्तलिफ वजारतों का, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने जो एक मीडिया के साथ इंटरेक्शन की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि कुछ वो काबीना में रीशफलिंग करें, लेकिन अभी तक उन्होंने इस सिलसिले में पर्टिकुलरली किसी एक वजारत जो है उसको उसका पोर्टफोलियो किसी और को देने के बारे में कोई फैसला नहीं किया। और मेरी अभी थोड़ी देर पहले वजीर आज़म इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी ज़राए से बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि शायद जो चौधरी फवाद हुसैन से नाराज सहाफ़ी हैं वो इसको उछालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐसी कोई पेशकश किसी को नहीं की। सही। अच्छा, बयानात एक तरफ, हामिद मीर साहब अगर ओवरऑल आपसे तज़िया लेना चाहें, 100 रोज़ से ऊपर हो गए हैं, अगर इन दोनों ही वजारतों का, वजारत इत्तलात और वजारत रेलवे का एनालिसिस आपसे लेना चाहें तो किस तरह से देख रहे हैं आप दोनों वजारतों की कारकर्दगी को? देखिए, वजारत सिर्फ दो वजारतों का एनालिसिस तो नहीं होता ना। आप ये सारा जिस एक खबर की बुनियाद पर ये सारी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जब वज़ीर आज़म के अपने करीबी ज़राए जो हैं वो उस खबर ही की तरदीद कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि मुझे इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जवाद साहब, जैसे मीर साहब भी बात कर रहे थे कि बज़ाहिर तो खान साहब भी बड़े मुतमईन लगते हैं दोनों वजारतों से, उनकी परफॉर्मेंस से, तो क्या उसके बावजूद भी ये तब्दीली आ सकती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि बुनियादी बात वहीं पे है। हामिद मीर साहब ठीक बात कर रहे हैं कि अगर
वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है या उनके करीबी ज़राए इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है ये एक ऐसा इशू है जो कि एक फेडरल मिनिस्टर जो कि समझे जाते हैं कि वो भी बड़े एतमाद के साथी हैं शेख रशीद साहब इमरान खान के साथ, उनकी जो बात थी वो गैर जिम्मेदाराना बात थी और उन्होंने शायद अज़राहे तफन्नुन ये बात कर दी है या नहीं की है या क्या गलत एट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन अगर उन्होंने बात की है शेख रशीद साहब ने, तो इसको इस तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये हुकूमत है, हुकूमत जो है वो जिम्मेदार होती है पूरे मुल्क को देखने की, चलाने की, उसका एक ताल्लुक होता है, ट्रस्ट का होता है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों की जिंदगियों का दारोमदार होता है। इसलिए इसको आप इग्नोर इस तरह नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने ये बात की है और अगर वजीर आज़म को जो एट्रीब्यूट किया है उन्होंने, वो इसके अंदर कोई ऐसी ट्रूथ है या नहीं है। बुनियादी बात यह कि अगर हम वापस पीछे जाते हैं तो पिछले दिनों जो डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली प्रेस से कहा था कि इस वक्त अगर हुकूमत, फौज, अदलिया, जो 3 सतून है वो एक पेज के ऊपर है, तो जो चौथा सतून है मीडिया, अगर वो धचके लगाएगा, वो उसको करेगा, उखाड़ पिछाड़ करेगा उसके साथ इन 3 इदारों के हवाले से, तो फिर मुल्क को नुकसान होगा। तो उन्होंने भी अपील की थी, गुड फेथ में रिक्वेस्ट की थी कि 6 महीने के लिए मीडिया अच्छा दिखाए। तो उनको अगर ये बात करने की जरूरत पेश आई तो इसका मतलब है कि ये आगाही कहीं ना कहीं जरूर है, हुकूमत में भी है और हुकूमत के मुक्तदा इदारों में भी है कि जो मीडिया के अंदर परसेप्शन बिल्ड हो रही है हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, वो या तो गलत है, ठीक नहीं है, या वो मैनिपुलेटेड है, या वो मिसमैनेज्ड है। अदरवाइज तो अगर मीडिया फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहा है तो फिर तो जरूरत नहीं है, ना डीजी ISPR को जरूरत है, ना किसी और को जरूरत है कि वो इस तरह का कोई सजेशन दे। और अगर मीडिया वो समझती है हुकूमत कि वो मीडिया फैक्ट्स नहीं स्टेट कर रहा और उसके बावजूद वो छपते हैं, चलते हैं और उन पर बहस मुबाहिसा होता है, तो जाहिर है फिर कंसर्न हुकूमत का है। अब शेख रशीद साहब भी बहुत क्लोज साथी हैं इमरान खान के, सारे कैबिनेट मिनिस्टर की तरह फवाद चौधरी साहब भी हैं, और अगर वजारत इत्तलात के हवाले से ये नजर आ रहा है कि उसमें कोई कंसर्न्स हैं, अभी पिछले दिनों उनके एक और भी तब्दीली की खबर आ रही थी कि शायद किसी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी, वजारत इत्तलात में और भी इंडक्शन होगी। तो हुकूमत का अपने तय ये जरूर फोकस है कि वजारत इत्तलात जो है उसको इतना फॉल किया जाए कि जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उस वाले से जो शुकूक व शुबात है उसको मैनेज किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए, और जो हुकूमत की अच्छी परफॉर्मेंस है उसको हाईलाइट किया जाए। ये कंसर्न तो बिल्कुल है, इसको नहीं डिनाई किया जा सकता। तो उस कॉन्टेक्स्ट में शेख रशीद साहब का ये बयान अगर ठीक है तो फिर वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अच्छा, राना जवाद साहब, ये भी कहा जा रहा था कि कारकर्दगी जो है, 100 रोज़ा कारकर्दगी का नतीजा पीर को आना है, तो क्या वो वक्त आ गया है? वज़ीर आज़म इस वक्त क्या सोच रहे हैं? काबीना में तब्दीली का वक्त आ गया है या इसी टीम को कंटिन्यू किया जाएगा? देखिए, उन्होंने तो अपने पिछले इंटरव्यू में ये बात वाज़ेह तौर पे की थी कि कोई भी पोजीशन जो उनकी कैबिनेट की है वो फाइनल नहीं है, वो डिपेंड करती है कि वो जो मिनिस्टर है या उनकी जो वजारत है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। और वो जो एक पूरा एंकर्स का उनका एक पैनल था जिसको वो जवाब दे रहे थे, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे इस बात को कहा था। और जैसे हामिद मीर साहब भी बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक रिव्यू नहीं किया लेकिन अगले हफ्ते करेंगे, तो यकीनन ये चीज़ तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो रिव्यू करने के बाद फैसला करेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है उसको शाबाश देंगे, जो नहीं काम कर रही उसमें तब्दीली लाएंगे, तो ये होगा, लेकिन फौरी तौर पे तो नहीं। बट बुनियादी फिर वही मसला आ जाता है कि क्या हुकूमत समझती है कि उसको अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की जरूरत है, या वो ये समझती है कि जो मीडिया के अंदर उस पर तनकीद है वो बेबुनियाद है और इस गलत फहमी का नतीजा है, किसी गलत फहमी का नतीजा है, या वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा। तो ये जाहिर है गवर्नमेंट को ये फैसला करने के बाद ही जो भी कैबिनेट के अंदर चेंजेस है वो इसी रोशनी में की जाएंगी। और अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पे करेंगे तो वो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर जब रिव्यू करेंगे तो उसके बाद उनका इख्तियार है कि वो किसी वजीर को रखें या किसी वजीर को तब्दील कर दें। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.